శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అస్మిన్ పరాత్మన్ ననుపాద్మ కల్పే త్వం ఇత్తం ఉత్తాపి పద్మయోని అనంత భూమా మమ ரோக ராசிம் நிருந்தி வாதாலய வாச விஷ்ணோ என்று அந்த பரமாத்மா எங்கும் வியாபித்திருக்கிறான். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆன்லைன் மூலமாக இன்று பங்கு பெற இருக்கும் அன்பர்களின் எண்ணிக்கை 861. பக்தர்களின் கோரிக்கையின் பெயரிலே திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை ஆன்லைன் மூலமாக பக்தர்களின் கோரிக்கையின் பெயரிலே தங்களுடைய வீட்டிலிருந்து இந்த கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்க வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. சங்கல்பத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். तस्मै समस्त वेदारविदे विकनसे नमः श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल संकुलं विष्णु भक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नन्ते सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत् श्री गोविंद श्री विष्णोः आज्ञाय प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभतिथौ शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनील अलर्मेलुमंगा समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः సన్నిధౌ మమ ఇప్పుడు అందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు వారు చెప్పుకోవాలండి.
కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ వీర్య ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం సర్వేషాం లోకానాం క్షేమార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగముక్త ప్రకారేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. திருமலையிலே ஒவ்வொரு கைங்கரியமும் அந்த பகவானுக்கு வைகானச திவ்ய ஆகம முறைப்படி ஆரம்பமாகி செய்கிறார்கள். இப்பொழுது நாம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம் மங்கள வாத்தியங்களுடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது ஆரம்பமாகிறது. பெருமாளை சேவிப்போம், நாச்சிமார்களை சேவித்துக்கொண்டு இந்த கார்த்திகை மாதம் இன்று 2வது நாள். இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே ஸ்நானம் அதாவது நீராடுவது மிகவும் விசேஷம். அதேபோல் ஹரியும் ஹரனையும் சேவிக்கலாம், அவர்களுடைய புராணங்களையும் படிக்க வேண்டும். அவ்வளவு நலம் தரும் இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே மிகவும் நல்ல விரதங்கள், பண்டிகைகள் மற்றும் அந்த எம்பெருமானுடைய புராணங்களை படித்தால் நாம் நல்வழி நற்கதிக்கு செல்லலாம், மோட்சம் கிடைக்கும். அப்படி இதற்கு முன் கூறிய அந்த பாசுரத்திலே இவ்வாறாக கூறப்படுகிறது. பரமாத்மாவாக எங்கும் வியாபித்திருக்கும் குருவாயூரப்பா, இந்த பத்ம கல்பத்திலே பிரம்மதேவனை இங்கனம் தோற்றுவிற்றவரும் அளவற்ற மகிமையும் உள்ளவருமான நீர் என்னுடைய வியாதி கட்டத்தை அடக்கி அருள வேண்டும். நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் 16, 32, 108 என்னும் அடிப்படையில் கூறிவர வியாதிகள் நீங்கி பரிபூர்ண குணமடைவார்களாம். இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே மழை காலம் ஆகையால் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் வேண்டும். அதேபோல் புராணங்களை எல்லாம் கூட படித்து அந்த பகவானுடைய நாமங்களை எப்பொழுதும் கூறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸ்நானங்கள் 8 வகை. அதிலே வாருணம், ஆக்னேயம், பிராமம், வாயவ்யம், திவ்யம், காபிலம், சரஸ்வதம், காயத்ரம் என்று இப்படி 8 வகையான ஸ்நானங்களை பகவான் நமக்காக வகுத்துள்ளார். ஜலம் கொண்டு ஸ்நானம் செய்வது வாருணம். விபூதியால் உடன் முழுதும் பூசியபடி நீர் விட்டு குளிப்பது ஆக்னேயம். மந்திரங்கள் கூறி புனித நீரை புரோக்ஷித்துக் கொள்வது பிராமம். பசுவின் குளம்படி தூசியை பூசிக்கொள்வது வாயுவியம். வெயில் அல்லது மழையில் நனைவது திவ்யம். இவ்வாறாக இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே நாம் அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கலாம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம். गुरवे नमः. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म. शुक्लांबरं विष्णुं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रयेत्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रोक्तमस्य दिनवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गकृपाङ्गपुतेन शुद्धपुण्यावाचनं गरिषे अदुःशक्तेनाराधनं गरिषे दादासप्तस्तजमानशेषोदरस्तस्य परिपूर्णतेजो
करके पांचभौतिकमावाहयामि गंगात्मनं पुण्यं पावनं तदकारणं ऋतुपादोषुद्धं शुद्धं धर्ममङ्गलदायिन ब्राह्मणबोधं नित्यभूतं वाहं गंगाजलाय नमः कावेरी तुङ्गभद्रा कृष्णवेणी गौतमी भागीरथी पंचगंगा प्रकीर्तिताः गंगाजलमावाहयामि जले वरुणमावाहयामि प्रहोदमावाहयामि रत्नाम्बरमावाहयामि राचस्पतिमावाहयामि प्रतेजसमावाहयामि वरुणाय नमः श्रीरामातरम् आर्घ्यपाद्यादित्रोपचारां समर्पयामि वरुणाय नमः दानोदपर्णपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपलङ्करणार्थं हस्तदां धारयामि गौडफलं निवेदयामि ताम्बूलं दुःखिता ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनादिदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादिचित्रोपचारां समर्पयामि स्वप्रेतः प्रसन्नो वरदो भवन्तु अदौषक्तेनाराधनं गणते दुष्क्तेनं सकलोदं प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं शुभाङ्गं सपनिमुकुटं विरवस्त्रं जा देवां धनुजुजं भक्तभद्रे सूत्रभद्रे दयासमेतं दुष्क्तेनाय नमः ॐ पद्माकारमण्डले दुष्क्तेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे स्तोत्रवदेमावाहयामि वामे जयमावाहयामि स्तोत्रवदे जयासमे दुष्क्तेनाय नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनयादिचतुरोपचारां समर्पयामि प्रशक्तेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ॐ प्रशक्तेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपायनाय नमः स्तोत्रवद्ये नमः जयाय नमः स्तोत्रवदे जयासमे दुष्शक्तेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि गोपदेवलङ्करणार्थं हस्तदां धारयामि गौडफलं निवेदयामि ताम्बूलं ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनाधिष्ठान देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादिचित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु सुपुण्याहं करोमि तद्विरोक्तिनमस्तु राजाधिप्रियधां प्रियधां प्राजापतिः काम्यन्तु गौराणि साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभाने अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्भिचक्रमे रथोव्या सप्तधामभिः इदं विष्णोर्भिचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढपस्य पागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णोर्घोपा अदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोत्कर्माणि वस्यते यतो रदानि वस्पसे इन्द्रस्य जोसुकः तद्विष्णोर्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरादितं तद्विप्रासो विभन्यवोदाग्रवां दस्यन्ते विष्णोर्यत्परमं पदम् भद्रं करणीमुष्टुन्याम देवाः भद्रं पश्येमा अच्युतयत्राः स्थिररङ्गैस्तुष्टभागं सद्गुणभिः देवायुधं यदायुः रघुन्याहमेव कुरुते न्याहं प्रवन्तः प्रवन्तु ॐ पुण्याहमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलेश्वर्यमस्तु आप्तदमस्तु शिवोस्तु शिवभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्वाङ्गकर्माङ्गं स्वस्ति प्रवन्तः प्रवन्तु तस्य नष्टार्मे च नेमित दातु वैवाहिकोत्वाङ्गकर्माङ्गं रुद्रप्रवन्तः प्रवन्तु रुद्रास्वाम्ये मित्रं देयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान विजा वर्धयन्तः शतञ्जीवेमृतस्तवीराः नवो नवो भवति जायमानो नाङ्के तुषता मेजग्रे भागं देवेभ्यः विदधाज्ञां चन्द्रमासरति दीर्घमायुः विद्युन्नवधियाः ध्रुवन्तो प्रवन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवदानमोद्ये ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वसिवधमोरसस्तत्यभाजेदिनः वदतेरुवमातरः तस्मात् तरङ्गमा भवो एस्य क्षया इति वदाम् आपोजनयता जनः पवमानसुभज्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः एक बोधा सापुनातुमां पुनन्तमादेव जनः पुनन्तमनमोदय पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव यजते अग्ने कृत्भागदा गम्प्रणौ हृदयवद्रमजुषे अग्ने च तमन्तरः ब्रह्मतेन पुनीमहे भाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते देव्यागात् यस्य भक्वे स्तनो भावेत पुष्टाः तया वदन्त शतमा तेजो अयज्ञस्यामपि तयोदयेन वैश्वानस्भिर्मापुनादो पादप्राणेनेषु सोमयो भूः ज्ञवा पृथिवी पैसापयोभिः तदा
परिज्ञेमा पुनितां रोद्वेषवदश्रुभिः वर्षैर्देवमन्विभिः अग्ने दक्षे पुनः हिमा येन देवा आपोनतः येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमहे यग्भौमानेरुध्येते ऋषभे समदगं रजं सर्वगं स पदमस्नादे स्वतितं मातरिस्वना पौमानर्यो अध्येते ऋषभे समदगं रजं तस्मै सरस्वते दुहे क्षेरगं तत्पद्मदोदकं पवमाने स्वस्तिने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभे समृदोरसः ब्राह्मणेष्वतिगं विदो पवमानदिसन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवैः समभृताः पवमाने स्वस्तिने सुतगाहे कतश्चतः ऋषभिः समृदोरसः ब्राह्मणेष्वतिगं विदो तेन ब्रह्मविदोमयम् ओदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीते सह मा पुनादो सोमस्तश्चन समेज्य नमो राजा प्रवृणातु मां जातवेदो मूर्ध्यन्त्या पुनादो तच्छम्यो रावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्यं जगातु वेजजं सन्नो अस्तु द्विपदे एजं बृहस्पते ॐ शान्तिः 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 राज्यां दिशे देववृत्ते दोमाद्यन्तां दक्षिणायां दिशि माता विद्रो देववृत्ते दोमाद्यन्तां नैज्यां दिशि गन्धर्भास्करपदे पदे दोमाद्यन्तां नैज्यां दिशि यज्ञपदे संवत्सरास्ते दोमाद्यन्तां ऊर्ध्वायां दिशि औषधयो वनस्पतिर्वे दोमाद्यन्तां अगरायां दिशि नागे गजे दोमाद्यन्तां पुण्याहमेव कुरुते ज्ञाहं ब्रह्मन्तो ज्ञाहं ब्रह्मन्तो सत्येनाय नमः वरुणाय नमः यदा कान्तापुत्रदातां स्थापयामि क्षेमातं திருமலை அப்பனை நாம் சேவிக்க வேண்டுமென்றால் மலையேறும் பொழுது அந்த பாதங்களை வைத்து எம்பெருமானுடைய தரிசனத்திற்காக செல்கிறோம். அப்படி நம்முடைய பாதங்களை வைத்து நடந்து செல்லும் பொழுது ஏராளமான பாபங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதற்காக முதலிலே க்ஷமாபணை கேட்டுக்கொண்டு அதன் பிறகு அந்த மலையடி அதாவது மலைப்படிகளை தாண்ட வேண்டும். ஸ்வர்ணாச்சல மகாபுண்ணிய சர்வதேவ நிஷேவித்தே பிரம்மாதி யோபியம் தேவா சேவந்தே ஸ்ரத்தையசைய தம் பவந்தம் அகம் பத்யாம் ஆக்ரமேயம் நகோத்தம க்ஷமஸ்வ ததகம் மே திய தயையா பாபச்சேதச துவன்மூர்த்த நிக்ருதாசம் மாதவம் தர்சயஸ்மே என்று பிரம்மாவும் தேவர்களும் எந்த வேங்கடமலை வினயத்துடன் வந்தடைந்து வணங்குகின்றனரோ அப்படிப்பட்ட பொன் நிறைந்ததும் அளவு கடந்த புண்ணியம் உள்ளதுமான சர்வ தேவர்களாலும் வழங்கப்பட்டதுமான பெருமாளுக்கு இருப்பிடமான மலையே தங்களை என் பாதங்களை வைத்து ஏறுகின்றேன், க்ஷமியுங்கள் என்று கேட்டுவிட்டு அந்த திருமலையப்பனை தரிசனம் செய்கிறோம். இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அந்த நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே இட்டு அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து புஷ்பங்களாலும் அக்ஷதைகளாலும் திருத்துழாய்களாலும் பூஜை செய்கின்றனர்.
அப்பொழுது அந்த தேவர்கள் வந்து அதிலே ஆவாகனம் ஆகிறார்கள். எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கும் பொருட்டு தேவர்களை எல்லாம் கூட வரவேற்பு என்னும் ஆஹ்வானம் கேட்டு அதன் பிறகு இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை அப்பன் சிறந்த பர்வதத்திலே வாழ்பவன். இதனால் அந்த பாதத்தை தங்களது இரக்கத்தால் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பகவானை சேவிக்கிறோம். தங்களுடைய சிகரத்திலே வசிக்கும் லக்ஷ்மியின் அதிபதியான வேங்கடேசனை நீங்கள் தரிசனம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று அந்த லக்ஷ்மி தாயாரையும் நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை மாதம் மிகவும் விசேஷமான இந்த மாதத்திலே அந்த பகவானுடைய நாமங்களை கூறி காதார கேட்டு மனதார பெருமாளை சேவித்தோமானால் அனைத்தும் நல்லதே நடக்கும். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. நாகாஸ்திரம் நாகாபரணம் என்று கூறுவார்கள். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முறையே பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ரக்ஷா பூஜையை நாம் இப்பொழுது சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இன்று பங்கு பெறும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை 861. இப்படியாக பக்தர்களுடைய கோரிக்கையை மன்னித்து பரந்தாமன் நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார் கல்யாண உற்சவத்திலே. आवाहयामे ध्यायामे ध्यानं समर्पयामे आवाहयामे आसनं समर्पयामे आर्घ्यपाद्यां समर्पयामे नानादपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामे ओम अनन्ताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः सहस्रशीर्षाय नमः धूपदीपालङ्करणार्थमक्षताम्रायामे गूढफलनिवेदयामे ताम्बूलं वदवस्तुता ताम्बूलं निवेदयामे आवाहनाज्ञानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयारे चित्रोपचारां समर्पयामे सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। हरिः ओं स्वस्तिनो ममेतामस्मिन् भगस्पतिरे व्याधितिरणर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति ज्यावा अप्रतिमेषु चेतनः स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्या स्वभवन्तु नः विश्वे देवानुद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निं स्वस्तये देवा आवन्द्रवो स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रक्पाद्ब्रह्मसः स्वस्तिमित्रावरुणः स्वस्य मध्ये देवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो ददे कृते स्वस्ति वन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवः पुनरुदादग्धदाजनदासं गमेमहे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टनेमि महद्भूतं वायुं देवदानम् असुरग्नमिन्द्रसखबुद्धिस्सोना वामिवारुहेम अं होमुचमां गीरसङ्गयं च सत्तात्रयमनुदाद्राक्षं वेदपाञ्चरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेष्णवयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையானே, சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, வேங்கடவனே, கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது ரக்ஷா பந்தனம் என்கின்ற காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியம். எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் அவருடைய வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் ஸ்ரீதேவி பிராட்டியும் பூமி பிராட்டிக்கும் இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். பூலோக வைகுண்டம் என்றால் நமக்கு நினைவிற்கு வருவது ஒரு கரையிலே கொள்ளிடம், மறு கரையிலே காவேரி. இதற்கு இரண்டிற்கும் நடுவிலே இருப்பவன் ரங்கநாதன். அதேபோல் கலியுகத்திலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது திருவேங்கடவன் நித்தியவாசம் செய்யும் திருமலை அப்பன். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஒரு முறை அந்த கொள்ளிடமும் காவேரியும் சென்று ரங்கநாதருடைய தரிசனத்தை இந்த கல்யாண உற்சவ வேளையிலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே சேவிக்கலாம் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. அந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே 330 அதாவது 365 நாட்களும் கூட அந்த எம்பெருமானுக்கு ஏதோ ஒரு கைங்கரியம் திருமலையைப் போலவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும். அதுவும் மார்கழி மாதத்திலே வரும் அந்த ஏகாதசியும் தசமி என்று 10 நாட்கள் கூட ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டு ராப்பத்து பகல் 10 என்று அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு அத்தியன ஓத்சவம் செய்யப்படுவார்கள். இதற்காக அந்த பகவானை நாம் நேரில் சேவிக்க வேண்டுமென்றால் நிச்சயமாக அந்த ஸ்ரீரங்கத்திற்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும்.
வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு அடுத்த 10 நாள் உற்சவம் ராப்பத்து உற்சவம் என்றும், அப்பொழுது அரங்கனுக்கு நாச்சியார் திருக்கோல் அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது. பகல் 10க்கு முதல் நாள் இரவு திருமங்கை ஆழ்வாரால் அருளப்பட்ட திருநெடும் தாண்டகம் அரங்கன் முன் பாடப்படுகிறது. இந்த உற்சவ நாட்களிலே திருமால் அர்ஜுன மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி அரையர் சேவை, திருப்பாவை கோஷ்டி சேவையை ஏற்பாராம். பெருமாளை சுமக்கும் பாக்கியம் பெற்ற ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் ஒரே மாதிரியான தலைப்பாகையை கட்டியிருப்பது கண்களை கவரும். சன்னதி திரும்பும்போது ஒய்யாளி சேவையிலே அந்த சர்ப்பகதி என்னும் பெருமாளை கீழே தாழ்த்தி அதன் பின் மேலே உயர்த்தி பாம்பு போல செய்வது கண்களுக்கு விருந்தாகும். தாளம், நடிப்பு, பாட்டு இந்த மூன்றும் இணைந்தது அரையர் சேவை. அப்படி அந்த சேவையை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பக்தர்களை ரட்சிப்பவன் பரந்தாமன் ரங்கநாதன். இங்கே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே கூட பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்றது. இப்பொழுது அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல். எதற்காக என்றால், மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி எம்பெருமானின் மீதோ அல்லது நாச்சிமார்களின் மீதோ ஏகாகிரதமாக, அதாவது ஒருநிலைப்படுத்தி மனதை சிதறவிடாமல் அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு திருட நிச்சயத்துடன் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே செய்யப்படும் கைங்கரியங்கள். அப்படி நாம் செய்தால் நம்முடைய அந்த கைங்கரியங்களை ஏற்று நம்மை எல்லாம் ரட்சிப்பவர்கள் அந்த நாச்சிமார்கள். இதோ லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முடிந்த பிறகு பூமி பிராட்டிக்கும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய இருக்கிறார். இவள் குழந்தைகள் யாராவது தவறு செய்தால் அதை மன்னித்து பொறுமையாக அந்த பகவானிடம் கூறுபவள். அவர்களை தண்டிக்க வேண்டாம், நம்முடைய குழந்தைகள் தானே விட்டுவிடுங்கள் என்று பரிந்து பேசுவாளாம். தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஆக ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூமி பிராட்டிக்கும் இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக இன்னும் ஏராளமான இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது. அதற்காக தன்னுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தை மனதிலே லயித்து கொண்டு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமியின் தன்னுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை கட்டிக்கொள்கிறார். தொடர்ந்து நாம் காண இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். இந்த அக்னி பிரதிஷ்டையை அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அந்த அக்னி சாட்சியாக இந்த கல்யாண உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. மந்திரங்களை காதார கேட்போம், எம்பெருமானை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று அந்த பரந்தாமனை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே. அந்த மந்திரங்களை காதார கேட்கலாம். மேலும் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். रेगायां स्कंदमावायामे कनने पितृमावायामे स्तंडिले भूममावायामे अग्निमादाय यादवेदसे अग्निसद्भातमे दद्वाः यने नमयोगो कृतप्रतीको कृतप्रज्वाल्य उभावरोहेतग्निं निधाय उभावरोहेतग्निं निधाय वेदये ज्ञानो
ब्रह्मज्ञातमं पुरस्तात् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं राधारविन्दौ इन्द्रमावाहयामि सोममावाहयामि विज्ञानमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारभृत्य इदमासनं ब्रह्मं प्रोचिष्यामि प्रोचर्यमणं देवता प्रोचिष्यामि सोमर्भः प्रोचिष्यामि ब्रह्मं प्रोचिष्यामि प्रोचर्यमणं देवता वद्युतनागस्यपतिजमानस्तु लग्नदामे जन्मनुजामि प्रोचिष्यामि सोमाय नमः इदमासनं प्रोचिष्यामि प्रोचर्यमणं देवता वद्युतनागस्यपतिजमानस्तु विषेनांशापतिः सोमं प्रोचिष्यामि इद विष्णोस्तुपोऽसि प्राज्य इद विष्णोस्तुपोऽसि विष्णवे नमः इद विष्णोस्तुपोऽसि इद विष्णोस्तुपोऽसि महाविष्णवे नमः इद विष्णोस्तुपोऽसि व्यापिनारायणाय नमः इद विष्णोस्तुपोऽसि धृदासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोचिष्यामि प्रोचर्यमणं देवतावद्यजनागस्यपतिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोचिष्यामि प्रोचर्यमणं देवतावद्यजनागस्यपतिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रणय ओम बृह्णादो तवय बृह्णादो तस्मै वो बृह्णादो तस्मै वो बृह्णामि तस्मै वो बृह्णामि तस्य तरुणेभ्यं नमो देवसविने धियो यो न प्रचोदयात् यादवेदसत्तरं गत्वा विदरेतात् ब्राह्मणेभ्यः प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदनावाहयामि रुद्रानावाहयामि उपपोषस्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि कुशानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनिज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वामदेवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिः जुष्टो निर्वपामि अग्नि ज्येष्ठ निर्वपामि वसुज्योतिष्ठ निर्वपामि मरुज्योतिष्ठ निर्वपामि रुद्रेज्योतिष्ठ निर्वपामि उपपोषस्य ओम श्री महाविष्णवे ज्येष्ठ निर्वपामि बृहस्पतिये ज्येष्ठ निर्वपामि आदित्येभ्यो ज्येष्ठ निर्वपामि अश्विनेभ्यो ज्येष्ठ निर्वपामि पूष्णे ज्येष्ठ निर्वपामि कक्षाय ज्येष्ठ निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय ज्येष्ठ निर्वपामि यज्ञदेवतविश्वां देवेभ्यो ज्येष्ठ निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो ज्येष्ठ निर्वपामि तृप्यदर्शयामि कर्मदर्शयामि आत्मेभ्यो तेजसे समिदसे स्वाहा अमृतमसमार्मदे अंतरिक्षमंगाराभ्यः सोऽद्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पच्चिद्वापनाजोद्रणपद्रेण सोऽद्यस्तस्मै स्वाहा देवसप्ताजोद्रणपद्रेण सोऽद्यस्तस्मै स्वाहा करसं कुदान गृहीत्वा एकाविंशति प्रमाणाः मूलमभ्रतस्पर्शयित्वा अक्षताम् आद्यां चरवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः नमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन यस्व अनुमतेन यस्व सरस्वतेन यस्व देवतो धप्रसुव अयज्ञात्मा जातवेदं तेनेन श्रद्धयतोदे वर्धयजात्वां ब्रह्मानज समेधा यस्वाहा आगारमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु वायुव्यादग्नयान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्त इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा उपपोषस्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनिज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वां देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिगाद्य चरं सावित्रा गृहीत्वा पुनरभिगाद्य ओम भूः ओम भू स्वाहा
ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदते नमग्नस्ताः अनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवसो दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परे प्रदोत्तमस्य हिणवासस्वामनः वैवाहिकोज्वाङ्गपुतेन आगारमध्ये यूनानिक्तः सर्वलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षे अदते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवसो दप्रचुव अतो देवा वन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि तदेपदं समूढपस्तपागुंसरे यस्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्कर्माणि पश्यते यतो रदानि पद्मसे इन्द्रस्य यज्जुत्सका स्वाहा तद्विष्णोर्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुषा तद्गस्वाहा तद्विप्रा स्वाभिपन्यवोदा कुर्वां दुष्टते विष्णोर्यत्परं पदगस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदते नमग्नस्ताः हनुमते नमग्नस्ताः सरस्वते नमग्नस्ताः देवसो दप्रासावे अग्निप्रष्टापना मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु।
पाताळादि सप्तपाताळस्योपरितले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महल्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाकेशल्लोकानामदमभागे महानाडाय परिराजश्रेष्ठस्य सहस्रपणा पणिमण्डलमण्डिते दिग्धण्यदुण्डो दण्डोर्दम्बिते लोकैकलुते लवनानि सप्तसागरे प्रदे जम्बो प्रक्षादि सप्ते द्वीपे द्वीपदे माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यातीन्द्रप्रस्थादि नवकण्डात्मके हरिपुरुष किंपुरुषैरावदानामिंद्र प्रस्तर्पणक पांचजन्य सिंहलप्तके पंचाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण भूमंडले अखंडात्मके जम्बोद्वीपे भारतवर्षे वर्तखंडे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णाकाव्योन्मध्य प्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां दुवसा परेषां तत्वंस्याणां पितॄणां नरकादिवत्येज्य आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य पद हित चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति घोर्माब्धे ब्रह्मणे चत्रिकाश्यपाब्धे कोटिजातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीरस्य दिव्यमंगलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदार्घनन्द कौमोदकी पञ्चायुधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानस आगमोक्त प्रकारेण आङ्गिरसभारस्पत्यभारद्वाजत्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिभूत विधानेन प्रबद्धमानस्य संघर्षणावतार हे महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गिरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधवेद प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पस्थितिलगातमानसुचकीयमानस्य हे महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गिरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानुकृति मणिमकुटिचम्पराजित आधारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपात् भट्टवासुदेवस्य हे महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गिरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूर दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहन रूढाय अचिन्त्यात्मदेवन लावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पुत्राय शौण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम अथर्वण चतुर्वेदासागाध्यायी भार्गवचान अर्वैतल पंचाशे प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सद्भालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविंदा हे महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनंदकलात्मिका मूल प्रकृतिभूता उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जाताय इमां श्रीदेवी नाम्नि कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुस्साम अथर्वण चतुर्वेदासागाध्यायी काश्यपावश्चारणे दुरत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सद्भालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविंदा हे महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अदौ श्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनराशो जाताय इमां भूदेवी नाम्नि कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्कृतां यां स्वलंकृतां साध्वे स्वसेनाय सुमेधते रैतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकाम्याद्दर्शितये विश्वम्भरस्तद्वभूताः साक्षरसर्वदेवताः विश्वहेतुभ्यं प्रदास्यामि श्रीनाथु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महाङ्कान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। நமோ வெங்கடேசாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும்
மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய மந்திரங்களை காதார கேட்டு எம்பெருமானை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற உள்ளது. இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே பகவானை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையிலே அந்த எம்பெருமானுக்கு, மலையப்பனுக்கு கண்கள் மறைக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் அந்த கண்களில் இருந்து பொங்கி வரும் அருள் வெள்ளத்தை சாதாரண மக்களால் நம்மால் முழுமையாக உள்வாங்க இயலாது என்பதால் இரு கண்களையும் மறைத்தவாறு திருமண் காப்பு சாற்றியிருக்கிறார் பெருமாள். தன் கடைக்கண்ணால் மட்டுமே நமக்கு நல்லருளை சுரக்கிறார். வியாழக்கிழமை திருமஞ்சனத்தின் பொழுது திருமண் காப்பு இல்லாமல் முழு கண்களையும் தரிசிக்கும் பேறு கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் நடைபெற்ற திருமண கல்யாண நினைவாக வழங்கப்படும் பிரசாதமானது லட்டு. அந்த மிகவும் பிரசித்தியாக செய்யப்படுகிறது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லட்டு பிரசாதம். இவ்வாறாக அந்த எம்பெருமானுக்கு நித்திய கைங்கரியங்கள் செய்யும் அழகே அழகுதான். எப்படி என்றால், பெருமாளுக்காக பிரசாதங்கள் புதிய மண் சட்டியிலே தயாரிக்கப்படும். தயிர் சாதம் தவிர மற்ற பிரசாதங்கள் குலசேகர படியை தாண்டி பெருமாள் சந்நிதிக்கு செல்வது கிடையாது. இந்த திருமலை பெருமாள் கருவறைக்கு முன்னே படியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய குலசேகர ஆழ்வார் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே என்று பாடியுள்ளார். அதன் நினைவாகத்தான் இன்றும் கூட பெருமாளின் முன்னே இருக்கும்படி குலசேகரன் படி என்றே அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த திருமலை அப்பனுக்கு மிகவும் விசேஷமான மாதம் புரட்டாசி மாதம். ஏனென்றால் அந்த புரட்டாசி மாதத்திலே வரும் சனிக்கிழமைகளிலே அந்த பகவானை நாம் ஆராதனை சிறப்பாக செய்கிறோம். அந்த ஒரு மாதத்தையே பெருமாளாக எண்ணி பெருமாளுக்கு தினந்தோறும் தேனும் தினைமாவும் சமர்ப்பித்து வந்தானாம் ஒரு வேடன். அந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் மலையப்பன் அந்த வேடனுக்கு காட்சி தந்து அருள் புரிந்தாராம். அப்படி அதன் நினைவாக இன்றும் புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளிலே அந்த திருமலை அப்பனுக்கு மாவிளக்கு போடும் வழக்கமும் உள்ளது. வேடன் சமர்ப்பித்த தினை மாவிற்கு இணையாக அரிசி மாவும் தேனும் இணையாக வெல்லமும் சேர்த்து மாவிளக்கு போடுகிறார்கள். அந்த மாவு உருண்டை திருப்பதி மலையை குறிக்கின்றது. அதன் மேல் ஏற்றப்படும் விளக்கு மலைக்கு மேல் விளக்காக ஒளிவீசும் மலையப்பனை குறிக்கிறது. ஆகவே புரட்டாசியிலே தோன்றிய புண்ணியன் என்று அந்த பகவானை நாம் சேவித்துக் கொள்கிறோம். புரட்டாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்திலே முதலாக திருமலையில் பெருமாள் அவதாரம் செய்தபடியால் புரட்டாசி மாதமே திருமலை அப்பனுக்கு மிகவும் உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. ரிக்வேதம் போற்றும் திருவேங்கடம் அராய் காணே விகடே கிரீம் கஷ்ய சதான்வே சிரிம் பீட்டஸ்ய சத்வபி தேபிஷ்ட்வா சாதயாமசி என்று ரிக்வேத மந்திரத்திலே அந்த எம்பெருமானையினுடைய திருமலையினுடைய புகழை குறிக்கிறது. ஏழைகள், எதிர்காலம் பற்றி அறிவில்லாதவர்கள், துன்பப்படுபவர்கள், சுற்றத்தாரின் ஆதரவு அற்றவர்கள் ஆகிய அனைவரும் பக்தர்களோடு இணைந்து ஸ்ரீனிவாசன் திகழும் திருமலைக்கு சென்று அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளில் அடைக்கலம் புகுந்தால் அவன் காத்தருள்வான் என்பது அந்த மந்திரத்தின் பொருளாகும். இவ்வாறாக திருமலை அப்பன் இத்தனை விசேஷமான குணகணங்களை தன்னுள்ளே அடக்கிக் கொண்டு நம்ம எல்லாம் ரட்சித்து வருகிறான் அந்த திருமலையப்பன். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த அனபாயணிகளுக்கு அணிவிக்கப்படும் மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து அவர்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க எம்பெருமானுடைய அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த நாச்சிமார்கள் இருவருக்கும் கூட இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. लोकरक्षण हेतमे कंठे बध्नामि शुभहे साधे वज्रधाम तदम मांगल्यम तंतुदानेन लोकरक्षण हेतमे कंठे बध्नामि शुभहे साधे वज्रधाम तदम मांगल्यम तंतुदा
तेना लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सादेव शरदां शतम् मांगल्यं तंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सादेव शरदां शतम् मांगल्यं तंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सादेव शरदां शतम् मांगल्यं तंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे सादेव शरदां शतम् मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु मुहूर्तोस्तु शुभ्रदिष्टितमस्तु प्रसुम इमां लाजानामित्य विहार्य इमां लाजानावमे समृद्ध्य करधान् मम मध्यं संवदाना इमां लाजानावमे समृद्ध्य करणान् मम तभ्यं संवधानां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्यो दग्धौ राजाना वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावमे समृद्ध्य करणान् मम तभ्यं संवधानां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्यो दग्धौ राजाना वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्नस्ताः हनुमतेन मुग्नस्ताः सरस्वतेन मुग्नस्ताः देवतो दभ्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः लाजोमान्ते यूनानिक्त सर्वलोपप्रायश्चित्तार्थ अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो दप्रसुव अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पद समूढपस्य पागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्कर्माणि पश्यत यतो रथानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्जुस्सका स्वाहा तद्विष्णोर्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरात् दग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं स्वस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्नस्ताः हनुमतेन मुग्नस्ताः सरस्वतेन मुग्नस्ताः देवसो दप्रासावे हस्तदेवदेव पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गगर्भाङ्गपुतेन भूपृष्ठा अन्तहोमं करिष्ये हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसौ धप्रसुव एतस्य कर्मणोत्वरेरचं विद्वासो निभाकर अग्निष्वा त्रिष्टकृद्विद्वान् सर्वध्वंसो दङ्करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृदावतीनां कामानागुं समर्थत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्ट देवतां मुष्मै स्वाहा
स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्मा नामिंद दोपो दग्धि तत्पुनराहर्जातवेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्धिचिक्तुतात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानायवं तुक्षोभ्य स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिभ्ये स्वाहा वैषमदृष्टे स्वाहा निष्कुत्यै स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रामित्याष्टावद समिदसे तेजोसे तेजमय दे स्वाहा सूर्य सदे में है चक्षुर में पाहि स्वाहा सोम सदे में है चित्तम में पाहि स्वाहा यम सदे में है बुद्ध में पाहि स्वाहा वायुर्दे में है प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दे में है बुद्ध में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तर्ष सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्राब्ददाद्वाय जन्त सप्तयो निर्वा प्रणस्वघृते न स्वाहा ततदानमिद्वाननष्टब्देन पूर्णमाहुत मनसा प्रजापति ये स्वाहा अग्निभुक्त गस्वाहा वेदभुक्त गस्वाहा जहोभुक्त गस्वाहा जहोभुक्त गस्वाहा पदवीभुक्त गस्वाहा ओषध वनस्पति गंधर्वा रजसैव भुक्त गस्वाहा अग्निर्जेन्न गस्वाहा वेदजेन्न गस्वाहा जहोजेन्न गस्वाहा जहोजेन्न गस्वाहा पदवीजेन्न गस्वाहा ओषध वनस्पति गंधर्वा रजसैव जेन्न गस्वाहा समन्तापदाकृतेन पूर्णमाहुत मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमां जुहोमि पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आद्यसे तेन इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं जुहो यद्वा पूर्णाहुति मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महाङ्गो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निष्टुपद वेदष्टुपद योष्टुपद पदवेष्टुपद ब्रह्माद्यातृप्यन्त अदतेन मुञ्यस्वाहा अनमतेन मुञ्यस्वाहा सरस्वतेन मुञ्यस्वाहा देवतो दप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां अधरायां वे पश्चिमधपरदपनयां दक्षिणधपरदपनयां उत्तरधपरदपनयां प्राच्यां विष्णो सदनमसि यद्देवानां त्रयायुषां तन्मयास्तत्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय सतं वर्षते त्रयायुषम् पोहिष्टामयो भुव तानवोज्ये ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वसवतमोरसस्तस्य भाजयतनः कुसतेरुवमातरः तस्मात्तरङ्गमाभावो यश्चक्षया विन्वदा आपो जनयता जनः ॐ च मेश्वरश्च मे यज्ञो पतते तपस्या ओ नमोऽस्तुते कृष्ण मोक्षहीनं वा मोक्षहीनं वा भगवान्
तत्तु सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मानुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आगस्त्यमपगस्त्य यज्ञेश्वराय नमः गुडफलनिवेदयामि समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्न वरदो भवन्तु नित्यमात्राणि समस्त अग्निगायत्री जपं ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை நாம் இப்பொழுது சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். இந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாள் அந்த மாயவனை மணம் செய்து கொள்வதாக தான் கண்ட கனாவை தலைவி தோழிகளுக்கு கூறுதலாகும். அந்த கனவினுடைய விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள் நாச்சியார் திருமொழி என்னும் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே. வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று நாளை வதுவை மனம் என்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசுடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கனாக்கண் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனாக்கண்டேன் தோழி நான் என்று இப்படி 11 பாசுரங்களையும் தன்னுடைய கனவு விற்த்தாந்தங்களையும் தன்னுடைய தோழிகளுக்காக கூறுகிறாள். அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமியும் மற்றவர்களும் செய்கிறார்கள். அதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்திலே விஷ்ணு சித்தரின் பெண்ணாக அவதரித்த அந்த ஆண்டாளானவள் கோதாதேவி என்ற பெயருடன் மாலைகளை தொடுத்து தன்னுடைய கழுத்திலே சூடிக்கொண்டு அதன் பிறகு எம்பெருமானுக்கு அனுப்புவாள். இவ்விதமாக தினமும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் அந்த வட்டபத்திர சாயினுடைய சாங்கத்தியத்தை பெறுவதற்காக தான் மாலா கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டு அந்த எம்பெருமானை திருமணம் செய்து கொள்வாள். அவ்விதமாக மாலைகளை எல்லாம் தொடுக்கிறாள். தன்னுடைய கழுத்திலே போட்டுக்கொண்டு அந்த கிணற்றிலே அழகை பார்த்து கொண்டு எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள். இதை ஒரு நாள் அந்த விஷ்ணு சித்தரானவர் கண்டுபிடித்து வேறு மாலையை தொடுத்து பெருமாளுக்கு அணிவிக்கிறார். பெருமாள் அப்பொழுது அமைதியாக இருந்து அதன் பிறகு இரவு நேரத்திலே அவருடைய கனவிலே வந்து அந்த ஆண்டாள் தரித்த மாலையைத்தான் எனக்கு சூட்ட வேண்டும், அதன் பிறகு இனிமேல் இந்த காரியம் செய்ய வேண்டாம் என்று கூறினாராம். அன்றிலிருந்து கோதாதேவி அனுப்பிய மாலையைத்தான் எம்பெருமானுக்கு சூட்டுகிறார்கள். இவ்விதமாக 3 முறை அந்த மாலையை பரிவர்த்தனமாக மாற்றுகிறார்கள். மாலையை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நாம் இப்பொழுது அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்திலே அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. அந்த தோள்களை அலங்கரித்த மாலையை பார்த்தவுடன் எங்கள் பெருமாள் தான் சிறந்தவர் என்று பக்தர்கள் கூறுவார்களாம். இவ்விதமாக மாலா பரிவர்த்தனம் முடிவு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டி பூமி பிராட்டி இருவர்களையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே அமரச் செய்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. எம்பெருமான் நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த திருமலையின் ஆனந்த நிலையத்தை நாம் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். விமான வெங்கடேஸ்வரரையும் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையிலே நாம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் ஏராளம், தீர்த்தங்களும். அப்படி அந்த திருமலையப்பனை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கு பெற்ற அன்பர்களின் எண்ணிக்கை 861 பேர்.